personnel all in this cantonment area. It's right next to the the crash site, and on this side of the crash site and on the other parts, of course, is a very thick civilian area. So it could have been far worse. Now these are more pictures coming in on your screens, of course, of people who are stunned, people who are, of course, some who are running away, some who are going to the site. Obviously, people are very startled seeing this, the kind of flames and smoke we've seen billowing out of the crash site, which obviously leads to a fear that there was a very, a big fire which had broken out after this crash came to light. Jatin Rawal, let me quickly come back to you. Okay, I think we've lost that connection with Jatin Rawal there. But these, of course, are the big developments coming in. A passenger aircraft has crashed right next to the Ahmedabad airport. It's crashed very close to the Ahmedabad airport. It reportedly struck something at the time of takeoff. These are all preliminary reports, remember. This is big breaking news coming in. This news has just come in a few minutes ago, so we're still trying to gather more information. Obviously, teams are being mobilized at nearby airports. You can see there stretchers are being deployed, nurses are being mobilized. A state of emergency has been declared there in Ahmedabad after this plane crash. 242 passengers reportedly on board this Air India flight. We also do know that the Chief Minister of Gujarat has cut short his program. He is rushing to the site of this incident. The Home Minister of India, Amit Shah, has also spoken with the Gujarat Chief Minister. Of course, the Gujarat CM was away for a program. He's cut that short. He's rushing to this site of the incident in Ahmedabad. We're also being told that the National Disaster Management Authority teams are also being rushed to Ahmedabad. Let me quickly bring back in Jatin for more on this story. Jatin, a state of emergency declared there in Ahmedabad. Hospitals have been told to be on high alert. Stretchers are being rushed. Nurses are being mobilized as we speak, even as fire brigade is being rushed to the spot as well. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं जी, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, जिस तरह मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को और जो है वहां पर तुरंत ही पहुंचने के लिए वहां पर उनको आदेश दिए गए। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तकरीबन 7 मिनट पहले जो है वो मेघानी नगर के लिए निकल चुकी है। थोड़ी देर में वहां पर और जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची होगी। तो साथ ही साथ वहां पर जो बीएसएफ कैंटोनमेंट था, तो बीएसएफ कैंटोनमेंट की भी टीम जो है वो वहां पर जो है वो बीएसएफ के जवान जो है वो वहां पर पहुंच हुए। तकरीबन 150 से ज्यादा जवान पहुंच चुके हैं और दूसरे जवान जो है थोड़ी देर में जो है वहां पर पहुंचने की तैयारी है। यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ बीएसएफ के जवान है, साथ ही साथ पुलिस का जो पूरा जो काफिला है वो वहां पर उनके साथ जो है अभी जो बचाव कार्य जो चल रहा है उसके अंदर ये पूरा जो भी पुलिस के जवान है और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम एक टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी पहुंच चुकी है और बाकी भी टीम जो है वो वहां पर अभी थोड़ी देर में जो है पहुंच चुका है। 100 लोगों की इसमें अब तक जो है तो हो सकता है कि गुंजाइश है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस वक्त रश कर रहे हैं अहमदाबाद। उनका प्रोग्राम था किसी और इलाके में, वो कट शॉर्ट किया गया है। जतिन, गृह मंत्री अमित शाह की भी बातचीत हुई है गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से। जी बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की बातचीत हुई थी और सीएम जो है वो सूरत के कार्यक्रम में थे। जैसे ही उनको कॉल मिला था तुरंत ही वो अहमदाबाद एयरपोर्ट जो जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में सीएम भी जो है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जो है वो भी वहीं पर जो है वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। यानी कि पूरा जो मूवमेंट है वो अभी वहां पर जो है वो लगा हुआ है और पुलिस का भी जो जितना भी अहमदाबाद के अंदर जितने भी जो पीआई है सभी लोगों को वहां पर पहुंचने के लिए जो है वो आदेश फिलहाल जो है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ जो बचाव कार्य गए एम्बुलेंस जितने भी थी एम्बुलेंसों को भी अभी फिलहाल जितने भी आसपास की एम्बुलेंस थी सबको अहमदाबाद जो मेघानी नगर जो इलाका है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर मूवमेंट करने के लिए उनको जो है वो बता दिया गया है। यानी कि पूरी तरह से ये
जो इमरजेंसी कॉल है अहमदाबाद के अंदर अभी फिलहाल जो है वो घोषित कर दिया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की गुंजाइश जो है वो अभी जो है वो सामने आ रही है। अब देखना ये है कि कितने लोगों को राहत बचाव कार्य के द्वारा जो है वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। सिविल के अंदर अहमदाबाद हॉस्पिटल सिविल बाजू में ही आई हुई है। सिविल के अंदर इसके लिए अलहदा बेड जो है वो जिस तरह जब प्लेन जब क्रैश हुआ था उसी समय थोड़ी देर के बाद ही बेड खाली कराने की व्यवस्था जो है वो वहां पर शुरू कर दी गई, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता था। उनको भी अंदाजा था कि ये काफी बड़ी दुर्घटना लग रही है और इसमें इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी वार्ड की काफी जरूरत पड़ेगी। तो इमरजेंसी जो वार्ड है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का, तो वहां पर जो इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से अभी खाली कराने की तजवीज जो है वो पूरी तरह से जो है वो अभी चल रही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर भी पूरी तरह से अफरा तफरी मची के फायर पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो सभी के जभी जो है अभी फिलहाल राहत